Hello students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Please subscribe, like and share my videos. Today we are going to the fourth topic of our series of lectures that we are studying here, the body fluids and circulation. So इससे पहले हमने देखा formed elements, plasma like WBCs, RBCs, thrombocytes. Today we are going to discuss the lymphatic system. In lymphatic system we are going to read about the lymph. Then we see the lymphatic vessels. Lymphatic vessels में हम देखेंगे that's capillaries. Then we see the lacteals. Then we see the lymphatic ducts. Then the third point we are going to discuss is that lymph nodes. These are the three topics which are going to discuss here. First we will see the lymph. What's lymph? How it's formed and why it's present. So what's lymph? Lymph. Lymph is a Latin word which means that's water like fluid. So what's lymph? It's water like fluid. The composition of lymph. What's present inside the lymph? What's composition of lymph? Lymph is actually simply that's plasma minus proteins. Three types of proteins are present in plasma, that's albuminous, globulous and fibrinogen, plus type of agranulocyte WBC, that is lymphocytes. These are present in the lymph. This is the composition of lymph, plasma minus protein plus lymphocytes of WBCs. This is lymph. Lymph, where it's present? Location. It's present in body, all over, in tissues. ठीक है ना? अब देखते हैं हम lymph ये बनता कैसे? How it's formed? Composition of lymph is easy to remember, water-like fluid. ठीक है ना? Suppose this is for my heart. This is heart. And this lungs. So, यहां पर थी कुछ ऐसे और स्ट्रक्चर्स थे. These was arteries. These are arterioles. Arteries are broader than the arterioles. Arterioles are narrower than arteries. थोड़ी arterioles जो होती हैं, these are narrower than the arteries. ठीक है ना? क्या होता है? Blood was flowing like this. यहां से यहां आता. ठीक है ना? फिर क्या होता था? यहां से कुछ अदर टिश्यूज में चला जाता था, फिर टिश्यू में से उसमें हो जाता था मिक्स, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड. देन द ब्लड बिकम्स deoxygenated blood. These deoxygenated blood was carried again back into the heart, then to lungs, where it was purified again and sent back to heart. Then the cycle repeats same and continuously. So lymph यहां पर बन जाता था arterioles में. कैसे बनता था? When the blood was flowing, यहां से आ रहा था यहां पर. फिर arterioles जो बनी होती हैं, that's formed of simple layer of squamous epithelium. Simple layer of squamous epithelium. This is the tissues जिनका बना होता है क्या? आर्ट्रियोल्स. ठीक है ना? मैं अब यहां आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगा दरअसल आर्ट्रियोल्स में होता क्या है ना? ठीक है ना? ये ब्लड जब यहां से आता था, थोड़ा कुछ ब्लड यहां से लॉस हो जाता है. ठीक है ना? वही ब्लड जब लॉस हो जाता है, वो लॉस कैसे होता है? जो लॉस ब्लड हुआ होता है उसमें से प्लाज्मा होता है प्लस लिम्फोसाइट, वही लिम्फ बना देती है. अब हम देखते हैं ये दरअसल आर्ट्रियोल्स में होता क्या है. ये मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं. सपोज मैं आर्ट्रियोल्स का कोई हिस्सा यहां पर ड्रा कर लेता हूं. Suppose this is arterioles.
ठीक है ना। आर्ट्रोल्स है, यहां पर कुछ गेप्स होंगे, इसे मैंने बताया ना, ये बनी है सिंपल स्क्वैम्स ऑफ एपिथेलियम, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, देयर यहां पर क्या होगा, आर्ट्रियोल्स में ब्लड फ्लो हो रहा होगा, इसमें होंगी WBCs होगी, यहां पर WBCs हैं, RBCs होंगी, और होगी क्या होगी यहां पर, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स, दैट्स प्लेटलेट्स। ये ब्लड में सिंपली क्या हो रही होंगी, फ्लो, ठीक है ना। यहां पर और भी होगा, दैट्स प्लाज्मा, some plasma comes out from here, from these slits, ये जो slits हैं or the space, some plasma comes out, ठीक है ना। ऐसे कुछ प्लाज्मा बाहर आ जाएगा, फिर क्या होगा, ये प्लाज्मा कुछ बाहर आ गया है ना। RBCs का साइज बड़ा है, 12 to दैट इज 7 to 8 mm होता है, WBCs का उससे भी बड़ा होता है थोड़ा, दैट इज 12 to 20 mm। ये इन स्लिट्स को पार नहीं कर पाएंगी। Also, the thrombocytes cannot enter or come out from the slits. Now, some plasma plus lymphocytes comes out. ठीक है ना, जो पहले ही मैंने बताया आपको lymph होता क्या है। Now, plasma, some lymphocytes comes out, then gets accumulated here. ठीक है ना। यहां पर और एक टिश्यू की लेयर होगी, that's basement membrane. This is basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन और आर्ट्रियोल से ब्लड निकला, यहां पर एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये ब्लड जब यहां से लॉस हो गया, सपोज फिल्टर्ड ब्लड कुछ यहां पर आ गया, ये फिल्टर्ड ब्लड है ना। नाउ अगर हार्ट को सपोज 20, हमें पता है 5.5 लीटर्स होते हैं ब्लड प्रेजेंट इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हार्ट को 20 ml या लीटर्स ब्लड पहुंचना है, लेकिन क्या हो गया, यहां से कुछ ब्लड आउट हो गया, सपोज 17% हार्ट तक पहुंच गया, 3% कम हो गया, दिस 3% गेट्स लॉस्ट फ्रॉम दिस आर्ट्रियोल्स। नाउ व्हाट हैपेंस, द ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, हार्ट तक पूरा ब्लड नहीं पहुंचेगा, इसकी वजह से क्या होगा, दैट इज ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब यहां पर एक मैकेनिज्म है, इस ब्लड को हमें फिर पोर करना है इनटू मेन आर्ट्रियोल्स, ठीक है ना, नहीं सॉरी वेन्स में, अभिनयम में ड्रॉ करना है। अब क्या होगा, वो जिन वेसल से होगा उन्हें हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, उन्हीं से लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ कैरी होगा एंड पोर बैक अगेन इनटू द आर्ट्रियोल्स, देन इनटू द वेन्स, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये लिम्फ है यहां पर, ठीक है ना। नाउ अब यहां पर भी कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे, इनमें लिम्फ फ्लो होगा, यही कहलाती है लिम्फेटिक वेसल्स, दीज आर लिम्फेटिक वेसल्स। नाउ द लिम्फेटिक वेसल्स हम अब पढ़ेंगे, लिम्फ हमने देखा बनता कैसे है, जो ब्लड फिल्टर हो गया आर्ट्रियोल से बाहर निकल आया उसको हम कहते हैं लिम्फ, लेकिन ये लिम्फ हमें बैक ड्रॉ करना है वापस अपनी मेन आर्ट्रियोल्स में, ठीक है ना। उसके लिए अब हम पढ़ेंगे कौन सा सिस्टम, दैट्स लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स में मैंने आपको बताया, पहले हम पढ़ेंगे आर्ट्रियोल्स, और सॉरी पहले हम पढ़ेंगे कैपिलरीज, देन आफ्टर कैपिलरीज वी सी द लैक्टियल्स, उसके बाद हम देखेंगे क्या, दैट इज लिम्फेटिक डक्ट्स। पहले हम देखते हैं कैपिलरीज क्या है। ये लिम्फेटिक वेसल्स में हमने पहले देखा, ये इनको हम क्या कहेंगे, लिम्फेटिक कैपिलरीज। Lymphatic capillaries are what they actually acts like the blood. They are like blood capillaries. ये किनकी तरह होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, बिकॉज दे फंक्शन लाइक ब्लड कैपिलरीज। बट इनके मुताबिक एक मैं आपको मतलब एक पॉइंट बता देता हूं, दैट्स दे आर ब्लाइंड एडेड।
blind-ended. Blind-ended means they have only one end. They are closed at one end. यहां से ये क्या होंगी? क्लोज. ये किसी एक ही जगह पर ओपन होंगी, या यहां से होंगी या यहां से. यहां से ओपन होंगी लेकिन यहां से क्लोज्ड होगी. That's why they are known as blind-ended. Second, they are lined by endothelium. Lined by endothelium. So what's capillaries? Capillaries are like the blood. Capillaries, they are blind-ended and are lined by endothelium. ठीक है ना? अब इन कैपिलरीज में मैकेनिज्म क्या होता है? सपोज ये कैपिलरीज होती दरअसल कुछ ऐसे हैं. सपोज जब लिफ की व्हेनेवर द कंसंट्रेशन ऑफ लिफ गेट्स एक्सीडेड हियर, यहां पर लिफ जब ज्यादा हो जाता है, सो इसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर डेवलप हो जाता है. क्या हो जाता है? प्रेशर ज्यादा हो गया इनमें. अब कैपिलरीज में डेवलप, कैपिलरीज में जब प्रेशर ज्यादा डेवलप हो जाता है, ये वैल्व्स खुल जाते हैं ऐसे. ठीक है ना? ऐसे 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 ऐसे, इनमें लिफ अंदर चला जाता है. जब फिर अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? जब अंदर अब प्रेशर हो गया, फिर ये वाल्व जैसे फिर बंद हो जाएंगे. ठीक है ना? ऐसे होंगे फिर ये वाल्व्स बंद. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ब्लाइंड-एडेड. इनमें यहां कोई ऐसी पर्टिकुलर ओपनिंग नहीं होती है जहां से लिफ अंदर जाएगा. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ब्लाइंड-एडेड. इनकी क्या फंक्शन होती है? फंक्शन इनकी यही है, टू कैरी लिफ. ये हमने क्या देखा? दैट्स कैपिलरीज. नाउ लुक एट टुवर्ड्स लैक्टियल्स. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैक्टियल्स हियर? लैक्टियल्स, lacteals are actually what? Now lacteals क्या है? Lacteals present in intestines. Let me to erase this first. Basement membrane. ठीक है ना? Arteriole. Now lacteals क्या होते हैं? Present in intestine. Like यहां पर ही होंगी. Villi of intestine. That's हमें तो पता है. There is villi present in intestines. Suppose this villi and this is microvilli. What's villi or microvilli? These are finger-like projections found or present inside the intestines. अब यहां पर क्या होगा? इन विलाइज में क्या होता है? फैट होता है ना? इन्हीं में ये प्रेजेंट होती हैं इसे. दिस इज व्हाट? लैक्टियल्स. दिस इज लैक्टियल्स. दिस आर लैक्टियल्स. यहां पर भी ऐसे लैक्टियल्स होगी. ठीक है ना? अब इन लैक्टियल्स की क्या फंक्शन है? टू carry absorbed fat in the form of chylomicrons. What's chylomicron actually? It's absorbed fat. ठीक है ना? इसी फॉर्म में ये इस फैट को कैरी करेंगी. So due to this fat they appear milky. Due to fat, hence called lacteals. Lacteals means milk-like. That's why they are milk-like due to fat. इनकी क्या फंक्शन है? इनकी फंक्शन है to carry this absorbed fat and pour into the ducts. ये इनको अब डक्ट्स में पहुंचाएगी. किन डक्ट्स में? वो हम देखें. दैट्स लिम्फेटिक डक्ट्स में. पहले हमने देखा कैपिलरीज की क्या फंक्शन है. ठीक है ना? बनी किन की होती है. फिर देखा lacteals are present inside the intestines. Their function is to carry absorbed fat in the form of chylomicrons. They appear lacteals milky due to the fat. ठीक है ना? यहां तक हमने क्या देखा? ये सिस्टम. अब हम देखते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स
इनको देखते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स को। नाउ lymphatic ducts. What are lymphatic ducts? Lymphatic ducts are actually, अब जब ये थी कैपिलरीज, ये कैपिलरीज क्या है, मल्टीपल थी, ठीक है ना। अब ये ज्वाइन हो जाएंगी ऐसे, these get joined to form a common duct. ये डक्ट कहां पर जाएगा, एंड गेट्स ओपनड हियर, ठीक है ना। फिर आर्टर्स में जाएगा, ब्लड ऐसे था, हार्ट था यहां पर, फिर यहां थी आर्टर्स, इन्होंने यहां से लिफ कलेक्ट किया, अब फिर हार्ट में पहुंचाना है, ठीक है ना। ऐसे इनकी फंक्शन है, इसको वापस ले जाना है ऐसे, इस लिम्फ को, ठीक है ना। ये किनकी फंक्शन है, लिम्फेटिक डक्ट्स की फंक्शन है, ठीक है ना। अब ये बनती कैसे हैं लिम्फेटिक डक्ट्स, अगर हम देखें लिम्फेटिक डक्ट्स, अगर आपको कोई पूछे, फॉर्म्ड बाय, लिख देता हूं, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज जब मल्टीपल कैपिलरीज join or combined and they form a common ducts, these are known as lymphatic ducts, formed by joining of capillaries, ठीक है ना। when the multiple capillaries join they form a duct which is known as lymphatic duct। ध्यान में आ गया। अब ये क्या है, lymphatic duct है ये। अब lymphatic duct is like the vein, it's like vein formed of 3 parts। इसमें 3 parts होते हैं, that is tunica, sorry, parts need 3 layers, that's tunica externa, that is second is tunica media, and third one is tunica interna। these are the 3 layers जिनकी ये लिम्फेटिक डक्ट्स बनी होती हैं, दैट्स ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, ठीक है ना। इन 3 की क्या कंपोजिशन होती है इनकी, दैट इज लिम्फेटिक डक्ट्स की। लिम्फेटिक डक्ट्स की और एक फीचर्स हैं, हम अगर इधर देखें इनका और एक फीचर है, लिम्फेटिक डक्ट्स हमने देखा ज्वाइनिंग कैपिलरीज जब ज्वाइन होती हैं तो ये बनते हैं, इनमें लाइक वेन्स होती हैं, सो वेन्स की तरह इनमें होते हैं, like veins they have multiple valves, जैसे मैंने ये इधर इसको ड्रा कर दिया, इसमें ऐसे वैल्व्स होंगे, मल्टीपल वैल्व्स, ठीक है ना। these valves helping to regulate the flow of lymph, ठीक है ना। यहां तक हमने क्या देखा, लिम्फेटिक डक्ट्स को यहां तक हमने देखा। लिम्फेटिक डक्ट्स इज ऑफ फर्दर 2 टाइप्स, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं, ताकि मैं आगे लिख सकूं यहां पर। लिम्फेटिक डक्ट्स पहले हमने देखा, इनकी 3 लेयर्स होती हैं, एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, इंटरना एंड मीडिया। फिर हमने क्या देखा, ये acts like a veins and have multiple valves। Another point we see about the lymphatic ducts is lymphatic ducts हमने और देखा ये बनती कैसे हैं, formed when the multiple capillaries join to form a common duct, which duct is known as lymphatic duct। Now अब देखते हैं हम, lymphatic duct is of 2 types, that is right lymphatic duct and left lymphatic duct। Ducts are 2 types, that's right lymphatic duct and the left lymphatic duct। So let's see first the right lymphatic duct। Right lymphatic duct collects blood from, कहां से collect करेगा, right parts of body। It collects blood from the right parts of body like neck region and arm, that's right neck and right arm के साइड से ज्यादा
ब्लड को कलेक्ट करेगी एंड opens into why these ducts gets open, these gets open into subclavian or right, sorry this is right subclavian or right jugular vein, means right lymphatic duct collects blood from right part of the body, that's neck and right arm, and opens into the subclavian or right internal jugular vein. Another point अगर हम इनके बारे में देखें, they are small as compared to left lymphatic duct. ठीक है ना? अब हम देखते हैं लेफ्ट lymphatic ducts. पहले हम देखते हैं ये कहां से ब्लड करेगा, collects blood from parts of body, that is thoracic region, ठीक है ना, left parts of body and opens into, ये कहां पर होगी, इसका अपोजिट है लेफ्ट subclavian और लेफ्ट जुगुलर वेन, यहां पर ये क्या होगी, ओपन होगी, ठीक है ना. ये ऑल्सो collects from that's lacteals. मैंने आपको बताया था ना पहले, lacteals भी होते हैं. lacteals की जो कलेक्शन है वो भी कहां पर जाएगी, लेफ्ट दैट्स लिम्फेटिक डक्ट कलेक्ट उसको करेगा, ठीक है ना, कलेक्ट फ्रॉम ऑल्सो lacteals. तीसरा पॉइंट अगर हम इनके बारे में देखें, these are large and collects 3/4 of total, sorry यहाँ ब्लड नहीं, lymph, forget here actually it is lymph, मैंने ब्लड लिख दिया था, collects 3/4 of total lymph, ठीक है ना. collects right lymphatic ducts collects lymph from the right side and this collects from the left side. This opens into right subclavian and right jugular vein. This also opens into the left subclavian and the left jugular vein, and it also collects from lymph from fat from the lacteals, and this is large and collects total of that's 3/4 of total lymph. Another point, if we see about the lymphatic ducts, that's last point about the lymphatic ducts, which is they are absent in some regions. That's important, very very important, is that is lymphatic ducts absent. कहां पर ये absent होंगी, ये होंगी absent, that's in eyeball, brain, that's bone marrow, eyeball, brain, और कहां पर ये होगी, spinal cord and internal ear. These are some regions where the lymphatic ducts are absent, ठीक है ना. Now यहां तक हमने क्या देखा, यहां तक हमने देखा first lymph, then we see the capillaries, then the lacteals, then the lymphatic ducts, how they are formed, and lymph भी हमने देखा बनता कैसे. Now we will see the third, that's the last part of this topic, that's lymph nodes. Lymph nodes. What are lymph nodes and what are their functions? मैं आपको पहले ही बता दूं, lymph nodes जो होते हैं, मैंने आपको बताया ब्लड यहां से यहां जाता था, ठीक है ना, फिर ये लंग था, ये हार्ट था, ये आर्टरीज थी, ठीक है ना. अब होता क्या है, जब ये ब्लड यहां पर जाता था, ठीक है ना, सपोज ब्लड में कोई पैथोजन एंटर हो गया, सपोज द पैथोजेंस गेट्स एंटर्ड इनटू द ब्लड, ये ब्लड है, सपोज ये पैथोजन है, ठीक है ना. इस पैथोजन की वजह से क्या होता है, ब्लड की एंट्री रुक सकती है एंड ब्लड गेट्स कोलैप्स इनटू द आर्टरीज, वेन्स, ठीक है. अब क्या होगा, जब ब्लड जमा हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा इनमें, तो क्या होगा, डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, हार्ट डिसऑर्डर्स हो जाएंगे,
So in order to protect blood from these pathogens, we have the special kind of entry, that's checkpoints. We can call them checkpoints, simply checkpoints. They work like, these checkpoints are actually lymph nodes. Lymph nodes. These lymph nodes works like पुलिस. ये ईमानदार पुलिस की तरह काम करते हैं. क्यों? ये चेक करते हैं इस ब्लड को, इनमें कोई पैथोजन तो नहीं. अगर हो उसे क्या करते हैं, उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, किल करेंगे. ठीक है ना. सो अगर हम लिम्फ नोड पहले देखें कि लिम्फ नोड्स पहले अगर हम देखें ये प्रेजेंट कहां पर होगी. ठीक है ना. ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली ये कहां पर होंगी, दैट इज एक्सियल एंड ग्रोइन, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूबस. ठीक है ना. एक्सियल रीजन दैट्स नेक रीजन, एक्सियल और ग्वायरन और ब्यूबस. इन जगह में एक्सियल रीजन एंड ब्यूबस, पेट वाला हिस्सा या ग्वायरन इसे कहते हैं, यहां पर ज्यादा लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं. दैट्स सिंपली ऑल ओवर बॉडी भी हम कह सकते हैं. ठीक है ना. दूसरा जो इनकी फंक्शन है ये था, ये प्रेजेंट कहां कहां पर होंगी. ठीक है ना. अब इनकी जो हम फंक्शन देखते हैं, पहले हम फंक्शन देखें. एक्ट्स लाइक अ फिल्टर्स, दिस एक्ट्स लाइक अ फिल्टर्स. मेरी इनकी फंक्शन क्या है, फिल्टर करना ब्लड को. मैंने आपको पहले बताया ब्लड को क्या फिल्टर करेंगे. फिल्टर को वैसे किडनी करती हैं, लेकिन ये फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे, ये सपोज क्या करेंगे, कोई पैथोजन एंटर हो गया, कुछ हो गया, उसे किल करेंगे. दैट्स व्हाई दे एक्ट एज अ फिल्टर. दे आर आल्सो सपोज्ड टू बी किल द कैंसरस सेल्स. किल cancerous cells. We know there are two types of cancer, that's benignant and malignant. We know the benignant cancer, that's not too much harmful. Benignant cancer has the property of contact inhibition, जिसकी वजह से the cancer cells cannot get separated from one place to another place. But another type is malignant, that's very harmful, and these malignant cancers have lost the property of contact inhibition. They have the property metastasis, from which or by which they get separated from one place to another place. ठीक है ना. Metastasis की वजह से they get separated from one place to another place. So these lymph nodes are also supposed to be kill these cancer cells. तीसरी बात जो इनके शेप अगर हम देखें, structure is kidney like. Structure that's kidney like. अब हम ड्रा करते हैं, देखते हैं lymph node कैसे होते हैं. Now this is the structure of lymph node. ये क्या है, this is lymph node. lymph nodes में अगर हम देखें, पहला ही वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं हाइलम. ठीक है. अब ये आउटर लेयर जो होती है, इसको हम कहते हैं कैप्सूल. दैट इज, दिस कैप्सूल इज फाइब्रस, सो इट्स नोन एज फाइब्रस कैप्सूल. ठीक है ना. ये आउटर लेयर क्या है, दिस इज द फाइब्रस कैप्सूल. ठीक है ना. अब यहां पर दो रीजन हैं, दैट्स इंटरनल रीजन, दैट इज, इसको हम कहेंगे दैट्स मेडुला रीजन. ठीक है ना. एक रीजन यहां पर है, इसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स आउटर, दैट्स आउटर region. ठीक है ना. This cortex region contains these inner inwardings, that's these growings. These inwardings are known as trabecules. Trabecules are present inside the cortex region, not in medulla region. ठीक है ना. अब और एक भी कुछ स्ट्रक्चर है यहां पर, दैट्स जो ब्लू से मैंने ड्रा किया है, इसे हम कहेंगे फॉलिक्यूलर क्लस्टर्स. These follicular clusters are also present in the cortex region, and trabecules are also present in the follicular region. This is the structure of lymph node. ठीक है ना. अब यहां पर क्या होगा,
ये जो है फॉलिक्यूलर क्लस्टर्स, यहां पर लिखता हूं फॉलिक्यूलर क्लस्टर्स. These follicular clusters contain primary nodules. These primary nodules contains lymphocytes मगर inactivated. These follicular clusters contain primary nodules. ठीक है ना? These primary nodules contain lymphocytes which are inactivated. Then when they get activated by antigen or stimulated by antigen, जब ये प्राइमरी फॉलिकल एंटीजन के साथ स्टिमुलेट हो जाते हैं, दे फॉर्म सेकेंडरी नोड्यूल्स. इन सेकेंडरी नोड्यूल्स को जो लिम्फोसाइट्स होती हैं दैट्स एक्टिवेटेड. आल्सो इनके पास फिर क्या आ जाती है, दैट इज प्लाज्मा सेल्स. अब मैंने क्या बताया, मैंने बताया follicular clusters contain the primary nodules. These primary nodules have the lymphocytes but these lymphocytes are inactivated. When these primary nodules get stimulated or they get touch of antigen, they get transferred into secondary nodules which have the lymphocytes but activated and also the plasma cells. ठीक है ना? ये हमने क्या देखा, lymph nodes, and we see the structure, location and the function of lymph nodes. lymph nodes के बाद हम और भी देखते हैं, we have also other the lymphatic organs, that is lymphatic organs. We have first spleen, we have liver, we have tonsils, we have bone marrow, we have thymus, we have pure speech. ठीक है ना? ये हमारे पास कुछ लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं, आल्सो सम लिम्फाइड ऑर्गन्स, दैट्स लिम्फ, लिवर, टॉन्सिल्स, बोन मैरो, थायमस, पिल्स, पिच. स्प्लीन जो होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट वन. स्प्लीन, दिस एक्ट्स एज ए ब्लड बैंक. ब्लड बैंक हमने पिछले वाले टॉपिक्स में देखा था. इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द स्प्लीन. ठीक है ना? In the first times, that's why they are known as blood bank. And after the birth of the child, this function of spleen is taken over by the bone marrow. ठीक है ना? Bone marrow taken over this function. After the erythrobiosis function is taken over by the bone marrow, but after birth. After birth जो RBCs हैं bone marrow में बनती हैं. ठीक है ना? ये हमने देखा था. Then after birth spleen की क्या function होती है? Acts as a after birth acts as a that is graveyard of RBCs, because we know the last span of RBCs is 120 days. When they complete this 120 days, they get destroyed and gets accumulated in the graveyard region, that's spleen. ठीक है ना? spleen का भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, that's outer layer is known as splenic capsule. They also have the trabecules, that is inward growings. ठीक है ना? इनमें भी कुछ inward growings होती हैं ऐसे lymph nodes की तरह. इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट्स ये है, क्या है, trabecules. यहाँ पर spleen में 2 types of polyps present here, that is red and white polyp. 2 types of polyp होते हैं, that is suppose ये white polyp है, white polyp, and this is red polyp. White polyp is responsible for the formation of WBCs, and red polyp is responsible for the formation of red blood cells. ठीक है ना? Now these are the some lymphoid organs. अब इसके बाद हम देखते हैं functions of lymph. Functions.
जो पहली इसकी फंक्शन है दैट इज, मैंने पहले ही बताया था, एक्ट्स एज फिल्टर्स। मैंने आपको पहले बताया था दे एक्ट्स एज अ फिल्टर्स एज रिमूव हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। सेकंड बात मैंने इनके बारे में क्या फंक्शन बताई थी, कैरी फैट, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट। ठीक है ना। तीसरी जो ये करती है दैट्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एज दे हैव लिम्फोसाइट्स। इनके पास प्रोटेक्शन हमें ये देती है, क्यों प्रोटेक्शन देती है, बिकॉज दे हैव लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होती हैं टू टाइप्स, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। अब बी लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, फॉर्म ये कहां पर होती हैं, दैट्स इन बोन मेरो। ठीक है ना। दूसरी बात मैच्योर कहां पर होती है, ये मैच्योर्स एट प्योर स्पीच। ठीक है ना। यहां पर ये क्या होगी, मैच्योर होंगी। ठीक है ना। अब ये थी इन केस ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स। हायर वर्टिब्रेट्स, what happens in case of lower vertebrates? Lower vertebrates have another organ which is known as, that is bursa of Fabricius, which is present in cloaca. Cloaca, you know, and the bursa of Fabricius is the analogy organ to bone marrow, and they also gets matured in the same organ, that's bursa of Fabricius. That's in case of lower vertebrates like birds. birds में क्या होता है, बोन मेरो कहां पर बनता है, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स बनती है bursa of Fabricius, and they gets also mature there. T lymphocytes gets formed in thymus. ये था ये। अब हम थोड़ा बहुत और भी कुछ देख लेते हैं लिम्फाइड ऑर्गन्स के। हमें लिम्फेटिक सिस्टम में हमें कौन से डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ठीक है ना। डिसऑर्डर्स, what kind of disorders we will face in the lymphatic system? The first is that is plague. फर्स्ट क्या है, प्लैग। प्लैग में क्या होता है, प्लैग में होता है lymph nodes enlarge at axial and groin or pubis region। लिम्फ नोड्स क्या है, एनलार्ज हो जाते हैं एक्सियल और ग्रोइन रीजन में। ठीक है ना। ये किसकी वजह से हो जाती हैं, दैट्स अ बैक्टीरिया जूनोटिक, दैट्स जूनोटिक बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं यर्सीनिया पिस्टिस। Yersinia pestis is a zoonotic bacteria which is responsible for the plague. It can be detected by, और टेस्ट इसके लिए क्या है, उसे हम कहते हैं Weissenstein's test. Weissenstein's test is the test by which we can detect that the plague disease. ठीक है ना। Another disease we have, that's elephantiasis. Elephantiasis or filariasis. Elephantiasis और filariasis क्या है, इसमें क्या हो जाते हैं, lower lymphatic organs swells, mostly of lower limbs and sometimes genital organs also.
मैंने क्या बताया, एलिफेंटियोसिस और फेलियर इट्स अ डिजीज इन विच द लिम्फेटिक वेसल्स क्या हो जाती हैं, अफेक्टेड हो जाती हैं, स्वेलन हो जाती हैं, कहां पर, मोस्टली इन द लोअर लिम्स एंड द जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है ना। इट इज caused by failure worm, that's Wucheria के दो टाइप्स होते हैं, दैट्स Wucheria bancrophati and Wucheria malai. Wucheria bancrophati and the Wucheria malai. These are the two that's failure worms which are responsible for the elephantiasis. लेकिन ये जो failure worms हैं, these enters into humans by the bite of female mosquito. क्या मैंने बताया, filariasis. It's also known as elephantiasis. It's a disease in which the lower lymphatic vessels, that's of lymphatic vessels or lower limb, and the sometimes genital organs gets affected, gets swollen due to this failure worm which is Wucheria. It's of two types, which especially two types नहीं है, especially इनमें जो होती हैं दो worms, that's Wucheria bancrophati and Wucheria malai, and these are transferred into the human by the bite of female mosquito, ठीक है ना। This was the whole about the lymphatic system. Thanks.